أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 170. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس کی پیروی کرو، اس کے انوسار چلو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کے پیچھے چلیں گے، اسی کو فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا اگر ان کے باپ دادا عقل اور ریزن نہ رکھتے ہوں اور صحیح راستے پر نہ ہوں تب بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے؟ And when it is said to them, follow what Allah has revealed, they say, rather we follow that which we found our fathers doing, even though their fathers understood nothing nor were they guided. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک ایٹیچیوڈ بتایا، ایک مزاج بتایا ہے. عام طور سے انسان جو ہے دنیا میں ایسے ہی جیتے ہیں. وہ کیا طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی تعلیم آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ جاتی ہے، اور جب کسی سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے آپ سے، یہ کہتا ہے، تو جب اس کو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، ثبوت نہیں ہوتا، تو بس ایک ہی بات وہ بولتے ہیں، نہیں بھائی ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے، شروع سے ہم ایسے ہی دیکھتے آ رہے ہیں، سارا شہر ایسے ہی کرتا ہے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، کیا یہ سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک مین سوال ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے جتنے لوگ گمراہ ہیں اس کی وجہ یہی ہے. اب فار ایگزامپل اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیے، آپ کسی شیعہ سے پوچھیے کیوں آپ ایسا کرتے ہو، ارے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے. بریلوی سے پوچھو وہ بھی یہی کہے گا. اتنے سارے علماء سب غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ تو ہر آدمی کیا کہتا ہے؟ ہمارے بڑے ہمیں یہی بتاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے، اور مین جو غور کرنے کی چیز ہے یہی ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. کیا اگر تمہارے باپ دادا عقل اور ریزن نہ، لاجک نہیں رکھتے ہوں یا صحیح راستے پر نہ ہو تب بھی تم انہی کے پیچھے چلو گے؟ اب اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیے. اسلام میں امیر کی بات ماننا فرض ہے. امیر مطلب آج کی امیر نہیں، امیر جو اگر اسلامی خلافت ہے اور اس کا کوئی نائب ہے، اس کا کوئی کمانڈر ہے، تو اس کی بات ماننا فرض ہے. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوئی فوج بھیجی کہیں،
कमांडर ने कहा कि तुम आग में कूद जाओ, तो नहीं कूदे। आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अगर तुम उस आग में कूद जाते तो सीधे जहन्नम की आग में जाते। इसलिए कि रीजन के लॉजिक के खिलाफ है ये। अब देखिए अक्सर लोग इसमें मार खा जाते हैं, और बड़े लोग इसी में ब्लैक मेल करते हैं। क्या, तुम्हें मेरे सामने बड़े हुए जी, तुम्हें मेरे बच्चे जी, मेरे से जबान लड़ाता है, मेरे से बात करता है, मेरे से ज्यादा समझता है क्या? और ये इतने सारे लोग जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं क्या? तो पहली चीज ये देखना है कि हमारे बाप दादा या हमारी सोसाइटी या हमारे बड़े जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो अगर लॉजिकल है, समझ में आ रहा है कि हाँ ये सही चीज है, तो वो करना, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देना बहुत ही एहतराम के साथ, अदब के साथ कि नहीं हम नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अकल की बात करते हैं दुनिया के बारे में, लेकिन उनके पास हिदायत नहीं होती है, कुरान हदीस नहीं जानते। अब उन्हें बोलते हैं नहीं भाई ये तो गलत बात है, नहीं ये तो सही बात है। अब आपको सोचना है कि हमारे बड़े जिस चीज़ को सही बोल रहे हैं, क्या वो वाकई अल्लाह की हिदायत के मुताबिक सही है? और जिसको गलत बोल रहे हैं, क्या वो अल्लाह की हिदायत के मुताबिक सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं? अगर ये दो चीज़ नहीं देखेंगे तो दूसरों के पीछे पीछे चल करके जहन्नम में जाके गिर जाएंगे। देखेंगे तो माँ बाप भी वहीं पड़े हैं, हमारे बुजुर्ग भी वहीं पड़े हैं, हम भी वहीं पड़े। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें जब भी कोई बात कोई भी बड़ा आदमी बोले, ये दो चीज़ ज़रूर देखना, अकल की बात कर रहा है कि नहीं, लॉजिक की। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने हज के एक मसले में उनके किसी ने कहा कि आपके वालिद साहब तो ये बोलते हैं हज़रत उमर, और आप ये बोल रहे हैं, आपके बड़े हैं ना, वो आपके वालिद भी हैं, फिर खलीफा हैं, फिर उमर हैं, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, आप उनकी बात के उल्टा बोल रहे हैं। बोले मेरे वालिद की बात ज़्यादा मानने के लायक है कि मेरे रसूल की बात ज़्यादा मानने के लायक? मैं अपने वालिद की बात नहीं मानता, उनकी राय नहीं मानता। कैसी तरबियत उनकी हुई थी। और दुनिया में अक्सर लोग जो गुमराह होते हैं, याद रखिए ये इसी वजह से होते हैं। अक्सरियत ऐसा कर रही है तो ये सही होगा, नहीं, अक्सरियत और मेजॉरिटी हमेशा गलत रास्ते पर चलती है, हमेशा बेवकूफ़ों की होती है, हमेशा लॉजिक से दूर रहने वालों की होती है। अब मुसलमानों ही को देख लीजिए, अक्सरियत नमाज पढ़ती है कि बेनमाजी है, अक्सरियत करप्ट है या ईमानदार है, अक्सरियत ऐसी ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस हिदायत के मुताबिक चलने की तौफीक नसीब फरमाए जिसे उसने उतारा है। और जब भी हमारे सामने कोई बात आए, सिर्फ दो ही चीज़ देखना, बड़े हो छोटे हो, छोटे की भी बात मान सकते हैं अगर वो लॉजिक के मुताबिक हो। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि जब भी कोई बात बोलता है ना तो हम सिरे से रिजेक्ट कर देते हैं, वो फलां ग्रुप का आदमी है, वो क्या सही बताएगा। नहीं, एक हिंदू भी अगर कुरान की बात कर रहा है तो वो मानना फ़र्ज़ है, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने रिजेक्ट किया तो आपने हिंदू की बात रिजेक्ट नहीं की, आपने अल्लाह की बात रिजेक्ट कर दी। अल्लाह ताला हमें सही समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।